Welcome back to my next session in which I am going to explain you meaning of wholesale trade and meaning of retail trade along with the features. But before that, I would like to revise something about the previous lecture in which I have explained you what do you mean by internal trade, buying and selling of goods and service within the country is known as internal or home trade. जब मैं अपने ही देश में खरीदने बेचने की प्रक्रिया करूंगा उस ट्रेड को नाम दिया जाता है होम और इंटरनल ट्रेड. आफ्टर दैट I have explained you meaning of wholesale trade and meaning of retail trade. Wholesale trade means when the goods are purchased in the large quantities from the manufacturer or producer for the purpose of a resale to the different kind of retailers, it is known as wholesale trade. I hope you must be remembering the meaning of wholesale trade. When the goods are purchased from the manufacturer in the large number or in the bulk and resale to a different kind of retailers. Retailers means shopkeeper. Such kind of trade is known as wholesale trade. And then I will explain you the meaning of retail or retailers. When the goods are sold in a small quantity to various kind of consumers with the help of different wholesaler or distributor is known as retail trade. Means when the person will buy the goods from the wholesaler as per the requirement and he will sell the goods to a different kind of retailer, such kind of trade is known as retail trade. तो ये दो मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड एंड मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड का मतलब होता है वो ट्रेड जहाँ पे व्यापारी क्या करता है, कंपनी में जाता है, लार्ज नंबर में सामान खरीदेगा और अलग अलग दुकान वालों को बेच देगा. एंड रिटेलर क्या होता है, जो होलसेलर से खरीदेगा एज पर द रिक्वायरमेंट और इसको बेचेगा फाइनल कंज्यूमर्स को बेचेगा. तो आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड. और एक लाइन और बताया था, द पर्सन हु डू द होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर एंड द पर्सन हु डू द रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर. एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोड्यूसर will sell the goods to the wholesaler. Wholesaler will sell the goods to the retailer, and retailer will sell the goods to the consumers. So, this is the channel of distribution from manufacturer to the consumers. ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी और आज के लेक्चर में इसको ही मैं कंटिन्यू करूंगा बेसिक में, जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फीचर्स ऑफ होलसेलर एंड फीचर्स ऑफ रिटेलर्स. एंड फर्स्ट आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू फीचर्स ऑफ होलसेलर. होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन द लार्ज क्वांटिटी. यस, वी ऑल नो. फॉर एग्जांपल, there is a wholesaler who do the business of mobile and he buy the mobile from Delhi and sell it to a different kind of retailer. So the wholesaler will not buy single quantity. He will buy the goods in the large quantity and he will sell the product to a different kind of retailers. Second, wholesaler has to take risks in the process of distribution. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि होलसेलर को सारा रिस्क लेना पड़ता है जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है. सही बात है. जब दिल्ली से मुंबई वो सामान लेके जाएगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा है या कोई भी अननोन प्रॉब्लम्स ऑकर हो सकती है और इस प्रॉब्लम के अंदर अगर पूरा प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो
उसका सारा लॉस कौन बेयर करता है? होलसेलर करता है। एंड दिस इज द रीजन दे आर सेइंग इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू रिटेलर, wholesaler has to bear each and every kind of risk. Third, wholesaler deal with one or few types of goods. सही बात है, wholesaler deal with only one or two types of goods because he deals in the large number, he buy in the large number from the manufacturer, so he do the business only in few types of goods. होलसेलर क्या करता है? बल्क में सामान खरीदता है, तो वो क्या करता है कि एक दो कंपनी के साथ ज्वाइन होकर प्रोडक्ट बाय करता है और उसी को लाके क्या करता है, अलग अलग शॉपकीपर को बेच देगा। और इसलिए कहा गया होलसेलर डील विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, वेरी सिंपल, when we say wholesaler is the person who will buy the large quantities of goods, then capital will be the main factor, and in the case of a wholesale trade large number of capital is required in this business. To run the wholesale business, the wholesaler need large number of capital for running the business. होलसेल बिजनेस चालू करना है तो बिजनेसमैन को क्या लगेगा? लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल लगेगा। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट, ही सेल द गुड्स टू द रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। होलसेलर सामान प्रोड्यूसर से खरीदेगा और किसको बेच देगा? रिटेलर्स को बेच देगा। रिटेलर्स मीन दुकान वाले जो आपके घर के बाहर हैं, जहां पे आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है? सामान अवेलेबल मिलता है। So these are the features of wholesale. And the next features of retailer. Yes, retailers mean different kind of shopkeeper. They buy the goods from the wholesaler and sell the goods to the consumer. So retailer is a link between wholesaler and consumer. अब रिटेलर हमेशा प्रोड्यूसर के पास तो जाएगा नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मुंबई में दुकान है तो मुंबई में जो दुकान वाला है वो दिल्ली जाके मोबाइल को खरीदेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? एक ही बार होलसेलर से मंगा लेगा और किसको बेचेगा? कंज्यूमर्स को। तो रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, क्योंकि दे बोथ हैव अ गैप एंड द गैप इज फुलफिल्ड बाय द रिटेलर। सेकेंड पॉइंट, he operate in the local market. सही बात है, आपके घर के बाहर बहुत सारे मार्केट हैं, इन सारे मार्केट को हम क्या कहते हैं? लोकल मार्केट कहते हैं। और जितने भी शॉपकीपर या रिटेलर है वो कहाँ मिलेंगे? लोकल मार्केट में ही मिलेंगे। सो रिटेलर्स डील इन द लोकल मार्केट। नेक्स्ट, रिटेलर डील्स इन द वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड इन द स्मॉल क्वांटिटी। सही बात है, आपने देखा रहेगा आपके एरिया के बाहर ग्रोसरी शॉप वाला होगा, वो खाने पीने से लेके घर के सारे प्रोडक्ट रखता है, बेसिक प्रोडक्ट, मतलब ही की वैरायटीज ऑफ गुड्स, और वो लेस नंबर में रखता है क्यों? क्योंकि इसको मालूम है जैसे ही सामान खत्म होगा वो होलसेलर को ऑर्डर देगा और होलसेलर क्या करेगा? इसको सप्लाई कर देगा। और इसलिए कहा गया है रिटेलर डील इन द वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन द स्मॉल क्वांटिटीज। नेक्स्ट वन, फॉर ओपनिंग एनी काइंड ऑफ रिटेल बिजनेस इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस। यस, बिकॉज द बिजनेसमैन रन द बिजनेस इन द लोकल एरिया, द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज समवेयर genuine, so the price of each and everything is less, because of which the investment done by the retailer is limited। ये बिजनेस को चालू करना रहेगा, अगर रिटेलर को दुकान चालू करना है तो उसको चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कम लगता है। जैसे आपने देखा ही रहेगा, मैंने बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने घर के बाहर देखते हैं छोटे मोटे दुकानें रहते हैं, उनको चालू करने में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है, आराम से बिजनेस चालू हो सकता है और वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकता है। एंड फाइनली, व्हेन आई विल कंपेयर विद द होलसेलर, देयर विल बी लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर। मतलब
जब होलसेल ट्रेड से कंपेयर करेंगे रिटेल ट्रेड तो उसको रिस्क कम रहता है, लेकिन प्रॉफिट भी क्या होता है, कम होता है जब मैं क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं होलसेल ट्रेड से। सो दिस is the basic difference between wholesale trade and retail trade. But for doing distribution within the country, wholesaler and retailer play the major role in the channel of distribution. So I hope the basic concept is clear. Meaning of wholesale, features of wholesaler, meaning of retailers and features of retailers. Thank you very much.